Jai class 7 students, how are you? Hope you everyone fine. Class 7 students, this is computer class and me Tarkeshwar sir. Listen carefully. Today we just going to start a new chapter in this computer book. Okay. So for that, first everyone just open your note, open your this textbook for reading and understanding the next chapter. Because all of you know our malware and virus including the chapter 5th is completed. Now only the checking work of notebook is remain. So if your notebook is complete, then you just submit your notebook tomorrow, either today, either next day for checking and stamping. Okay. So just listen carefully up to the 5th chapter. You just mention in your textbook, notebook, and after that you just send to me either any types, either by on. If you just come with on, then it is a very better. Okay, for understanding we end. Okay, so now just open this computer book. On this computer textbook, you have to just open the page number 8, number system. Okay, our chapter is 8. Okay, number system. Which one chapter is? Number system. Listen carefully, because our 6th chapter, chapter 6 and chapter 7 is cutted according to the board. So remain of chapter 8 and 9. So we just remain for learning. So I will just open the page number 93. Okay, the page number 93 where this chapter things is mentioned. So all of you know the page number 93. Okay, page number 93. Then on that the first thing is this. When just see the let us the learn outcome. In the let us the learn outcome is decimal number system is first. Okay, which one number system is first? Decimal number system. Okay, a computer does not understand our language. Computer हमारी भाषा को नहीं समझता है. When we type and provide input to the computer, it is translated into electrical pulses. जब हम कंप्यूटर में किसी प्रकार की टाइपिंग करते हैं तो वे इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में काउंट होती हैं. एंड ईच इलेक्ट्रॉनिक पल्स इज आइडेंटिफाइड बाय ए कोड. और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स होती हैं वो किसी कोड के रूप में अंडरस्टैंड होती हैं. देन द कोड इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स. वही जो कोड है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? नंबर में. नॉर्मली न्यूमेरिक वैल्यूज आर स्टोर्ड आर ग्रुपिंग इन ऑफ बिट्स. जो नंबर वैल्यूज हम लोग लिखते हैं वो किसमें होती है? ग्रुप में होती है, जिन्हें बिट्स कहते हैं. ठीक है. Named of the number of bits that compose them. उन सभी के एकत्रित समूह को ही बिट्स कहा जाता है. All the letters and words we type in translated into a numeric format in a computer. Each character, symbols and numbers have numerical equivalent. जितने भी letters, words, either number हम लोग टाइप करते हैं वो सभी के सभी कैरेक्टर, सिंबल्स, नंबर एक नंबर में काउंट होते हैं आपके कंप्यूटर में. ठीक है. For example, if you just press the A button, okay, the A number calculates the value 65 and B is calculated the 66. जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से A दबाते हैं तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू 65 होता है, जबकि B दबाते हैं तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 66 होती है. तो सभी कैरेक्टर्स की, सभी टेक्स्ट की एक ना एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता. द कंप्यूटर इज जस्ट अंडरस्टैंड द न्यूमेरिक. ओके, नाउ द फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. दशमलव नंबर प्रणाली. ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम. In the decimal number system is a system that we have
that we use in our day-to-day life. The decimal number system has 10. Decimal number system में 10 डिजिट्स होते हैं. इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं. और कहां से कहां तक होते हैं? तो 0 to 9. I write here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इसी को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है. इसी को क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें कुल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं. नाउ it uses the base value 10. और इसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 10. इसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 10. Good. Then after, therefore, it is known as a decimal number system. It is a positional number system where each position represents some power of the base. For example, consider the decimal number 231. Here 2 represents 100, 3 represents tens and 1 represents 1 unit. Okay, 231. 231. ठीक है. 2 रिप्रेजेंट करता है 100 को, ये रिप्रेजेंट करता है टेंस को, और ये रिप्रेजेंट करता है वंस को. अर्थात सभी की पोजिशनल वैल्यू फिक्स होती है, इसीलिए इसे पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है. ओके, नाउ you have to see that example. Okay, in the example 2 is the most significant digit MSD, as it is carries the maximum value, and one is the least significant digit. MSD, most significant digit. Most MSD, most significant digit is 2, and LSD, least significant digit is 1. मतलब जो ज्यादा बड़ा है वो मोस्ट हो गया, जो सबसे कम है जिसकी वैल्यू कम है वो LSD हो जाएगा. नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम. इसमें 10 डिजिट होते हैं 0 से 9 तक. ठीक है, नंबर मैंने लिख दिए थे. एंड इसका बेस कितना होता है? इसका बेस 10 होता है. नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम. नेक्स्ट इज binary number system. Binary number system is a system where is only 2 digits. जहां केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1. 0 put off signal and 1 put on signals. Okay, in a computer literacy. But the base of this number is 2. इसका बेस कितना होता है? 2. 2 डिजिट होते हैं, 0 1 होते हैं. 0 ऑफ प्रेजेंट करता है, 1 ऑन प्रेजेंट करता है, और इसका बेस क्या होता है? 2 होता है. I think everyone just understand. Now, if you write the 2 number, okay, I think this is the 2. It is not a binary. ये क्या है? बाइनरी नहीं है. ये एक डेसिमल नंबर है. कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है. इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो 0011. ठीक है, maybe 001 maybe. इसको कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसको जब चेंज बताएंगे तो समझाएंगे. ओके, बट अभी इतना जानो कि बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट्स होते हैं, 0 1 इसकी डिजिट्स हैं, और इसका बेस 2 होता है. ठीक है, और इसमें 0 और 1 यही नंबर यूज किए जाते हैं. इसी को बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है. नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम. Okay, in your next chapter is octal number system. Octal number system, what you understand about it? Okay, octal number system. Oct. Okay, oct is a short form for octal. Okay, so it have only 8 digits. इसमें कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट. 8 डिजिट से ज्यादा इसमें नहीं होंगे. और डिजिट कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 0 to 7. और इसका बेस जो होता है
वो 8 होता है. ओके, इट्स बेस इज 8. ओके, now the next is a hexadecimal number system. Okay, hexadecimal number system. Next is hexadecimal number system. Okay, hexadecimal number system is number system where the digits and characters, इसमें दोनों चीज होती है, डिजिट भी होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं. टोटल 16 होते हैं. कितने होते हैं? 16. डिजिट जो होते हैं वो 0 to 9, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये इसके डिजिट होते हैं. बट इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो A to F होते हैं. A, B, C, D, E and F. इन्हीं का योग जो है 16 अंकों का 16 में अंक भी है और अक्षर भी है. ठीक है, तो इन्हीं अंकों और अक्षरों के योग जो 16 होते हैं इन्हीं को हेक्साडेसिमल नंबर कहा जाता है. और इसका बेस जो होता है वो 16 होता है. ओके, इसका बेस कितना होता है? 16 होता है. So I think all of you just understand about this. Okay. अभी जो हम सीखेंगे नेक्स्ट, वो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम. जैसे डेसिमल को कैसे किसी अन्य फॉर्म में चेंज करेंगे. ओके, नाउ अभी ये समझ में आया बेटा, जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं. देखो, देयर आर ओनली 4 नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर. कंप्यूटर लिटरेसी में कुल 4 नंबर प्रणाली है. दैट इज फर्स्ट इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड इज ए बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज ए ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ इज ए व्हाट इज फोर्थ इज ए hexadecimal number system. Okay, now the next only last topic I taught you. इसमें बस यही जो टॉपिक है इसे समझा देते हैं आज. कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर सिस्टम. ओके, तो इसमें कन्वर्जन में देखो लिखा हुआ है द डेसिमल नंबर सिस्टम कैन कन्वर्टेड टू बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है. जो रूल है वो नीचे ध्यान से देखो. ठीक है, व्हाट द रूल से, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम में बदलना है, अदर नंबर सिस्टम में तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहली स्टेप क्या कहती है? दिस से डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय द न्यू बेस वैल्यू. जो divide the given decimal number okay by the new base value, ठीक है. हमें किससे डिवाइड करना चाहिए? जो हमारी नई बेस वैल्यू बनेगी. देखो, अगर ये 24 है, इसका बेस क्या है? ये 10. ये क्या है? आपके डेसिमल नंबर सिस्टम है. अगर इसे बाइनरी में बदलना हो 0001 में, इसका बेस क्या है? 2. बाइनरी का क्या बेस होता है? 2. तो इस डेसिमल नंबर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे? जिस बेस में बदलना है. तो 2 में बदलना है, बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड करेंगे. अगर ऑक्टल में बदलना हो तो 8 से डिवाइड करेंगे. हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो 16 से डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ द सेकंड इज राइट द रिमाइंडर. उसके बाद से हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड करने के बाद से राइट द रिमाइंडर.
रिमाइंडर, हमें जो राइट करना चाहिए, राइट द रिमाइंडर, वी हैव टू राइट द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर्स को राइट करने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज इज सेज डिवाइड द कोशिएंट अगेन बाय द न्यू बेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो कोशिएंट बचता है, कोशिएंट उसको फिर से न्यू बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड द कोशिएंट अगेन divide the quotient again with the base value, न्यू बेस वैल्यू, जो नई बेस वैल्यू है उसी से डिवाइड करेंगे, ओके। देन रिपीट द स्टेप्स टू अंटिल यू रीच 0, जब तक कि आप 0 तक ना पहुंच जाएं, ठीक है। यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर, ओके। एंड द लास्ट रिमाइंडर ऑफ 10 विल बी अ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द न्यू नंबर। लेट us look at some example to understand, okay। now listen, कैसे होगा इसको देखा जाए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके। देखो फर्स्ट कन्वर्जन है, एग्जांपल फर्स्ट, कन्वर्ट 1 to 1 base 10 to its binary equivalent, to its binary equivalent, ओके। बाइनरी में बदलने के लिए कहा गया है, इन विच नंबर, बाइनरी, ठीक है। तो इसको 121 को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। इधर रिमाइंडर की लिस्ट लिखना, ये रिमाइंडर होने चाहिए, यहाँ रिमाइंडर्स होने चाहिए, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब ये 2 से डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा, 10 ये, हाउ मच टाइम यू हैव टू जस्ट गिव इट, कितनी बार जा सकता है, 2 6 12, 2 6 12 and put the 0 sign, put the 0 sign, ठीक है। So what is the remainder of here? So I think the remainder is 1, okay। Now 2 3 6, remainder 0, 2 15 2 1 2 and 2 5 10, remainder is 0, 2 7 14, remainder 1, 2 3 6, रिमाइंडर 1। तो ये डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये कोसेंट 0 ना हो जाए, ठीक है। 2 1 2 एंड रिमाइंडर इज 1, ओके। 2 0 0 एंड रिमाइंडर 1, ओके। सो अब इसी को इस तरह से लिख लेंगे। अब ये डिवाइड कैसे हुआ समझ लो, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेशन। 121 इज योर डेसिमल नंबर, 121 इज योर डेसिमल नंबर। 2 से डिवाइड करोगे तो 60 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 60 30 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से 30 50 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से 50 70 टाइम में डिवाइड हो जाएगा बट रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से 3 टाइम्स में 7 डिवाइड हो जाएगा बट रिमाइंडर 1 बचेगा। सिमिलरली प्रोसेस 2 0 0 एंड रिमाइंडर 1, ओके। अब इसी को नोट डाउन कर लेंगे। नाउ जस्ट नोट डाउन 1 1 1 1 0 0 1 और इसी को यहाँ बेस कर देंगे। इट इज योर बाइनरी नंबर एंड स्टोर, ओके। इस तरह से करेंगे का। नाउ यू जस्ट ट्राई to at your home
for understanding these things. Okay, इसको समझने का प्रयास करेंगे. Till then, thank you.